ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من غافل لاهٍ رواہ الترمذی۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا، ساری دنیا کا خالق اور مالک۔ درود و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کے جانب سے دی گئی ایک امانت کو اپنے بندوں تک، اللہ کے بندوں تک بلا کمی و پیشی امانت داری کے ساتھ میں پہنچایا۔ معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ مومن اور مسلمانوں کے درمیان میں پائے جانے والی غفلتیں اور ان کی بدعقیدگی جو ہے اس کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں کہی اور کچھ سنی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج میرے اور آپ کے درمیان میں، بلکہ دنیا کے اکثر لوگ، بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والے مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے عبادات میں جہاں سستی اور غفلت ہوتی ہے، سستی اور غفلت برتی جاتی ہے، جس عبادت کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، جس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، جس عبادت کو کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جس سے غفلت برتتے ہیں، ایسی ایک عبادت ہے دعا۔ اسی کے تعلق سے، دعا کی اہمیت کے تعلق سے آج کے جمعہ میں کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے تمام تعلیمات کو مکمل جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ معزز سامعین، دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی ایک عبادت ہے۔ دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ایک سہارا ہے۔
दुआ के ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी को तलब करता है। दुआ मोमिन का वस्फ़ है, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वस्फ़ था। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, अपनी ज़िंदगी के हर कोने में, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं तलब करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं की दरख्वास्त करते थे। चाहे वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म अम्बिया हो, उलुल अज़्म पैगम्बर हो या कोई भी हो, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं के ज़रिए से मदद हासिल की है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरे बंदों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। वक़ाल रब्बुकुम, आपका रब कहता है, आपका रब फरमाता है, आपके रब का ये हुक्म है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। दुआ एक बेहतरीन इबादत है। दुआ मुसलमानों का सहारा है, बल्कि तमाम इंसानों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से उसकी मदद हासिल करने का एक सहारा दुआ है। मैं और आप नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों की पाबंदी करते हैं, बहुत सारे ज़िक्र अस्कार की पाबंदी भी कर लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुआ नहीं करते हैं, दुआ को इबादत ही नहीं समझते हैं, दुआ को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं समझते हैं, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा जब दुआएं करता है तो वह अल्लाह के करीब हो जाता है। ये दुआ एक ऐसी इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के बहुत सारी आयात के अंदर ये हुक्म दिया है कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह पर ईमान ले आने वालो, ऐ अल्लाह पर यकीन रखने वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जो बंदा अल्लाह से दुआ करता है, दुआ आजिज़ी की निशानी है। बल्कि जो लोग दुआ से गफलत बरतते हैं और दुआ को इबादत नहीं समझते हैं, दुआ से गफलत हद से ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, दुआ का ना करना, अल्लाह से दरख्वास्त ना करना, अल्लाह से आजिज़ी का इजहार ना करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना मांगना, ये फ़ख्र और गुरूर की निशानी बल्कि तकब्बुर की भी निशानी बताई गई है। तो लिहाजा मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हम नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों की पाबंदी करते हैं, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करते हैं, तो वहीं एक इबादत दुआ भी है, दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करते थे, चाहे वो सफ़र में रहे, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो जंग में रहे, किसी भी हालात के अंदर, हालात कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो जाए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं के ज़रिए से हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद को तलब किया करते थे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बमुश्किल नमाज़ों के लिए हाजिर होते हैं, जैसा ही नमाज़ें ख़त्म हो जाते हैं, नमाज के फ़ौरी बाद फिर हम मस्जिद छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, चाहे घर में रहे, सफ़र में रहे, हदर में रहे, कहीं भी रहे, दुआओं को करना इसे इबादत ही नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया और बताया कि जैसे नमाज ज़रूरी है, वैसे इबादत भी, वैसे दुआ भी इबादत है, दुआ भी करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, दुआओं से गफलत ना करे। बल्कि आजकल हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग दुआएं करते हैं, दुआओं के अंदर हमसे बहुत सारी गफलतें तो होती हैं, उसके साथ साथ जो लोग दुआएं करते हैं वो लोग भी दुआ ऐसे करते हैं कि दुआ के अंदर आजिज़ी नहीं होती है, इनकिसारी नहीं होती है, अल्लाह पर यकीन नहीं होता है, अल्लाह से भरोसा नहीं रखते हैं, तो ऐसी हालात में दुआ करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को भी पढ़ा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا اللہ سے دعا طلب کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، بندہ دعا کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے دور ہوتا ہے بلکہ اللہ کے نعمتوں کی قریب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ دعا اللہ رب العالمین سے کرتے وقت میں اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے دعا کرو۔ دعا کرتے وقت میں یہ سوچو، یہ یقین کے ساتھ میں دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعا ضرور سنے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنین بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے تم دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت سارے تعلیمات سکھائے ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم دعا کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم بعد نماز فجر جو دروس ہم نے سنا ہے وہ تمام دروس کے اندر ہم نے دعاؤں کی اہمیت، دعاؤں کے آداب، دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات کے تعلق سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ انہی میں سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بدری حوالے حدیث کے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر جلدی نہ کی جائے، دعا کے اندر جلدی نہ کیا جائے، غفلت بھی نہ کیا جائے اور جلد بازی بھی نہ کیا جائے۔ جلد بازی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک صحابی باہر سے مسجد میں آئے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھا، نماز کے فوری بعد وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دیے۔ وہ صحابی کو اللہ کے نبی نے قریب بلایا اور کہا اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ سے دعا مانگنے میں بہت جلدی کر لیا تو نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے درخواست کیا کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے آپ مجھے بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا ادب بتائے کہ جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو آئے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو پڑھا جائے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے اپنے حاجت کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہاں دعا کے قبول ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہ آداب بتائے گئے۔ ایسا نہیں کہ بندہ آیا، نماز پڑھا، سلام پھیرا، فوراً ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے مانگنے لگا، نہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، نہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا، تو ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر بتایا کہ سلام پھیرنے کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود کو پڑھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت کو مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب اور اس کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ الگ بات کہ بعض بندوں کی دعائیں اللہ رب العالمین فوراً سن لیتا ہے، وہ دعاؤں کا اثر بھی دنیا میں فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے۔ دعائیں کبھی جلد قبول ہو جاتی ہیں اور دعائیں کبھی تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کو طلب کیا، 70 یا 80 سال تک ابراہیم لگاتار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، تو 70 یا 80 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور ایسے ہی ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا رہے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے 17 یا 18 سال تک لگاتار دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اے اللہ مجھے بیماری کے ذریعے سے تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ 17-18 سال یہ دعا کرتے رہے، تب چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور ایسے ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں پر بھی وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرتے رہے اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ किया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी दुआ किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआएं की, और उनमें से बहुत सारों की दुआएं अल्लाह ताला ने जल्दी कबूल कर लिया है, और बहुत सारे अंबिया की दुआओं को कबूल करने में मसलिहत के तहत अल्लाह ताला ने ताक़ीर कर दिया है। इसके ज़रिए से हमें यह सबक मिलता है कि दुआएं कभी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और दुआएं कभी ताक़ीर से कबूल होते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दुआ अल्लाह से करते हैं, अगर वो दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती है तो दुआ के जल्दी कबूल ना होने की वजह से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुनता है, अल्लाह ताला हमसे गुस्से में आ गया है, अल्लाह ताला के पास हमें मांग करके भी फ़ायदा नहीं है। नहीं, मांगना हमारा काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला है। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, दुआ करना, उसकी कोशिश करना, इबादत करना, हिदायत अल्लाह से मांगना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह से दरख्वास्त करना, ये दुआ करना हमारा काम है। कबूल करना और उसे शर्फ़ क़बूलियत से नवाजना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी बंदे के दुआओं को बेकार नहीं करता है, अल्लाह ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह ज़रूर हर मोमिन बंदे की दुआ को सुनता है, लेकिन दुआओं के सुनने में, उसके बदले में अता करने में अल्लाह की मसलिहतें होती हैं। कभी अल्लाह ताला जल्द अता कर देता है और कभी अल्लाह ताला देर कर देता है। तो लिहाजा दुआ अल्लाह से करना चाहिए, और कभी हमारी दुआएं अगर कबूल नहीं होते हैं तो इसकी वजह से हम घबराना नहीं है और अल्लाह से मायूस भी नहीं होना है। अल्लाह से अच्छी तरह से उम्मीद रखे, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के कबूल होने की उम्मीद रखते हुए दुआ करो, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल नहीं करता जो बंदा अपनी दुआ के अंदर गफलत करता है। वो बंदा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है जो बंदा जल्दबाजी कर देता है, गफलत की वजह से, गाफिल दिल से जो बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला वैसे बंदे की दुआ को कबूल नहीं करता है। गाफिल बंदे की दुआओं का अल्लाह मोहताज नहीं है, हम अल्लाह से दुआ करने के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआओं का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला है, मांगने वालों को भी अता करता है, नहीं मांगने वालों को भी अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन रब्बुल आलमीन इतना बड़ा मेहरबान है, जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है और बंदा अल्लाह की तारीफ़ को बयान करता है और अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह ताला कहता है ऐसे बंदे को कबूल किए बगैर, उसकी दुआ को कबूल किए बगैर खाली हाथ उसे लौटाने से अल्लाह शर्म महसूस करता है। तो लिहाजा दुआओं के अंदर गफलत ना करे, बल्कि हमेशा दुआओं का एहतिमाम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआओं का एहतिमाम किया करते थे, अज़कार की पाबंदी किया करते थे। देखो, इस्लाम इतना बेहतरीन मज़हब है, इस्लाम इतना बेहतरीन अदब सिखाने वाला मज़हब है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन हिदायत है, इस्लाम दीन नूर है, इस्लाम दीन मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से मेहरबानियों वाला है। आप उठा करके देखें, इस्लामी तालीमात में उसके मानने वालों को दीन इस्लाम ख़दम ख़दम पर दुआओं का एहतिमाम का हुक्म देता है। खाना खाने जाए जब भी दुआ का हुक्म दिया है, खाने से फारिग हो जाए तब भी आकर के दुआ का एहतिमाम का हुक्म दिया है, सोने के लिए जाए जब भी दुआ का एहतिमाम किया गया है, और नींद से बेदार जब होते हैं तो उस वक्त में भी दुआ करने का हुक्म दिया है। घर में दाखिल हो तब भी दुआ का एहतिमाम, घर से बाहर निकले तब भी दुआ का एहतिमाम, मस्जिद में दाखिल हो तब भी दुआ का एहतिमाम, मस्जिद से बाहर निकले जब भी दुआ का एहतिमाम, इस्तिंजा के लिए दाखिल हो तब भी दुआ का एहतिमाम, इस्तिंजा से बाहर आए तब भी दुआ का एहतिमाम। दीन इस्लाम उसके मानने वालों को ख़दम ख़दम पर दुआओं का एहतिमाम करने का हुक्म देता है। लेकिन मैं और आप तमाम दुआएं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन अमल करने से सुस्ती और गफलत के अंदर डूबे हुए हैं। उसी का यह नतीजा है कि अल्लाह की रहमत हमसे दूर होते हुए जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगने वालों से खुश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगने वालों को अता करता है। तो लिहाजा हमेशा मांगी जाए, लेकिन ये एक चीज़ याद रखो,
प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को चंद बातें ऐसे बताए हैं, चंद औकात ऐसे बताए हैं कि ये औकात में बंदे की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। उनमें सबसे पहली बात, रात के आखिरी पहर का जो हिस्सा होता है, तहज्जुद का जो वक्त होता है, ऐसे औकात में जो बंदे अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ते हैं, अपने नींद को छोड़ते हैं, अपने आराम को छोड़ते हैं, फिर अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं, 2-4 रकात नमाजें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो बंदे जब अल्लाह से दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों की दुआओं को फ़ौरन सुनता है। तो दुआओं के कबूल होने के जो औकात हैं, उन औकात में से एक वक्त रात के आखिरी हिस्सा है, यानी तहज्जुद का वक्त है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बंदे को दुआ करने का हुक्म दिया है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है। मैं और आप ज़रा अपने अंदर झांक करके देखें, हम नमाज के लिए आते हैं, नमाज के बाद क्या अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह से दुआएँ करते हैं? मेरे भाइयों, कितना वक्त लग जाएगा दुआ करने के लिए? 5 मिनट नमाज के लिए लगेंगे, 2 मिनट अल्लाह की हम्द व सना बयान करे और 30 सेकेंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद को पढ़े। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हाजतों को मांगे। अल्लाह ताला कहता है, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो बंदा अल्लाह की तारीफ़ को बयान करके, रसूल पर दरूद पढ़ के फिर अल्लाह से दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। तीसरी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब हालत सफ़र में होता है तो उस वक्त में जो बंदा दुआएं करता है, अल्लाह ताला उन बंदों की दुआओं को ज़रूर सुनता है। मैं और आप दिन और रात में हमेशा सफ़र के हालत में लगे हुए रहते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन चले जाते हैं, कभी डेली चले जाते हैं। जब भी हमें सफ़र का वक्त मिलता है, सफ़र का मौका हमें मिलता है, तो हालत सफ़र में अल्लाह से डरे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला कहता है, सफ़र की हालत में जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ को मैं ज़रूर सुनता हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 इंसान ऐसे हैं, उनके दुआओं को मैं ज़रूर सुनता हूँ और उनकी दुआओं के कबूल होने में कोई शक ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें से एक है दावतुल मुसाफिर, दावतुल मज़लूम व दावतुल वालिदी लिवलदिही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमेशा मज़लूम की दुआ को सुनता है। वो मज़लूम मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी हो, अगर वो मज़लूम है तो अल्लाह ताला मज़लूम की दुआ को ज़रूर सुनता है। दूसरा, मुसाफिर आदमी जब अल्लाह से दुआएं करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उस दुआ को सुनता है। तीसरे मेरे भाइयों, मेरे और आपसे हर इंसान से मुखातब है। अल्लाह ताला कहता है, दावतुल वालिदी लिवलदिही। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ बच्चों के हक़ में ज़रूर सुनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है। मेरे भाइयों, जहाँ मैं और आप अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, दीन की फ़िक्र करते हैं, तालीम की फ़िक्र करते हैं, मुस्तक़बिल की फ़िक्र करते हैं, तो जहाँ फ़िक्र करते हैं वो फ़िक्र होना चाहिए। वो फ़िक्र के साथ साथ हम कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ भी करें, ऐ अल्लाह हमारे औलाद को रोशन मुस्तकबिल दे, ऐ अल्लाह हमारी औलाद को दीन की दौलत से माला माल फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को जहन्नम के आदाब से बचा, ऐ अल्लाह हमारी औलाद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को तेरी रज़ामंदी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को तेरी नाराज़गी से हिफाजत फरमा। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के हक़ में दुआ करे, और एक हदीस में ऐसे ही बताया गया कि जैसे माँ बाप की दुआ बच्चों के हक़ में अल्लाह सुनता है, वैसे ही बच्चों की दुआ भी अल्लाह ताला माँ बाप के हक़ में सुनता है। जब माँ बाप जिंदे रहे तब भी सुनता है, अगर माँ बाप इंतकाल हो जाए तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को सुनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, इंसान के मरने के बाद भी उसे अजर पहुँचाते हैं, उसे सवाब पहुँचाते हैं, उसे अजाब से बचाते हैं। उसके लिए
रहमत का ज़रिया सबब बन सकते हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलदुन सालिहुन यदऊ लह। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को दीन सिखाते हैं, अगर माँ बाप अपने बच्चे को इस्लाम सिखाते हैं, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को सुन्नत सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, दीनी तालीमात को सिखाते हैं, उसके बाद अगर वो माँ बाप मर भी जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बच्चा उनके हक़ में दुआ करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी दुआओं को सुनता है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ दुआओं के कबूल होने के बारे में बताया, उनमें से पहली चीज़ तहज्जुद के वक्त में की जाने वाली दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की जाने वाली दुआओं को अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। हालत सफ़र में अल्लाह दुआ सुनता है, वालिदैन की दुआ अल्लाह बच्चों के हक़ में सुनता है, और ऐसा ही औलाद की दुआओं को अल्लाह ताला बच्चों के हक़ में, औलाद की दुआ को अल्लाह ताला माँ बाप के हक़ में भी सुनता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताइए। इन औक़ात में बंदा अगर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को सुनेगा। लेकिन मेरे भाइयों, एक ज़रिया, एक सबब, एक वक्त, एक अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बताया है कि उस आदमी के दुआ को अल्लाह ताला कभी भी नहीं सुनता है। साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मेरे हक़ में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे हक़ में ये दुआ कीजिए कि जब भी मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुन ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, तुम तुम्हारी रोज़ी को पाक कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाएगी। अतिब मतअमक, तो तुम्हारी रोज़ी को पाक कर लो, यानी हलाल रोज़ी को खाओ, क्योंकि बंदा अगर हराम रोज़ी खाता है फिर वो चीख चीख करके भी दुआएं करता है। तहज्जुद में करे, फ़र्ज़ नमाज के बाद करे, सफ़र में करे, यहाँ तक कि काबतुल्लाह को जा करके काबा का गिलाफ पकड़ करके रो रो करके भी अगर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को नहीं कबूल करेगा। वो बंदा जो हराम रोज़ी खाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खाना हराम हो, जिसका पीना हराम हो, जिसका पहनना हराम हो, जिसका ओढ़ना हराम हो, जिसका मकान हराम का हो, और जिसके जिस्म का गोश्त हराम माल से परवरिश पाया गया हो, ऐसा बंदा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कभी भी कबूल नहीं करेगा। हराम खाने वाले की दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो दुआओं के कबूल ना होने का एक सबब उसकी हराम कमाई होती है। हर मोमिन बंदे को, हर मुसलमान बंदे को, मेरे और आप में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम जो रोज़ी खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो अपने माँ बाप को खिलाते हैं, हम अपने अहल वयाल को जो खिलाते हैं, हम अपने बच्चों को जो खिलाते हैं, वो रोज़ी के बारे में गौर व फिक्र किया जाए कि कहीं इस रोज़ी के अंदर किसी का खून तो ना हो और किसी की गद्दारी तो उसके अंदर ना हो, गद्दारी के ज़रिए से कमाई हुई कमाई ना हो, धोखेबाज के ज़रिए से धोखा दे करके कमाई हुई कमाई ना हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल लुक़मा खाओ और हलाल लुक़मा खिलाओ, इसके ज़रिए से बंदा अल्लाह सवाब देगा और जन्नत अता करेगा। अगर कोई हराम रोज़ी खाएगा, हराम रोज़ी के ज़रिए से उसके जिस्म के अंदर ये गोश्त का टुकड़ा भी अगर बन जाता है तो उसका बदला ये है कि उसे जहन्नम में ले जा करके जलाया जाए उसको। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करो और हराम रोज़ी से बचो और लोगों पर जुल्म करने से बचो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी जो मासियात की दुआ करता है, जो गुनाहों की दुआ करता है, हलाकत की दुआएं करता है, ख़ते ताल्लुक़ की दुआएं करता है, ऐसे बंदे की दुआओं को अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करेगा। ख़ते ताल्लुक़ की दुआ अल्लाह ताला कभी भी कबूल नहीं करेगा। ख़ता रहमी करने वाले की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। जहाँ दुआ के कबूल होने के लिए औक़ात और ज़रिया तरीक़ा बताया है तो ऐसे ही चंद लोगों के बारे में ये भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हराम रोज़ी से बचे, हलाल रोज़ी को तलाश करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआओं की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहे, कभी दुआओं से गफलत ना करे। दुआएं कभी जल्द कबूल होती हैं, कभी ताख़िर से कबूल होती हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल करता है। कभी अल्लाह दुआओं के कबूल करने में
تاخیر ہوتی ہے، کبھی جلدی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کا فرض ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی عبادت کرنے، صحیح طریقے سے عبادت کرنے، حرام طریقے سے کمائی کو کمانے سے بچنے کی اور حلال طریقے سے کمائی کو کمانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الجبن اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا ومسيح الدجال والمحيا والممات لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر